अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ियों में। आज हम बनाने वाले हैं एक जिम और मैं आपको अपनी बेसमेंट में भी लेके जाऊंगी और चीज़ें भी दिखाऊंगी जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी, और थोड़ी सी मेरे बच्चे आपको दिखाएंगे चीज़ें और बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं। हम किड्स के लिए जिम बनाने वाले हैं। इसका ये पार्ट 1 होगा एंड पार्ट 2 भी आएगा सून। चल Hi guys, चलो। I'm going to open it. So look. And Mama. Oh. Wow, these are light. It's heavy. It's not light. It's open. एक मिनट बाबू। And then there's these ये guys. पेट में घूमो। Then there's I want to put them in color order. उधर लकड़ी पे लकड़ी थोड़ी साफ है। Hi, Simba. Wait, do Mama. बस एक मिनट। And then there's these. We have made a video for Let's Cook Together video. So we're making this tomorrow. Yes. And we have this to like instructions. These are the instructions. And now here. And hi guys, so we're opening the swing. So my mom Elastic. and then we have screws right here too, but they fell out. And that's for the climbing rock thing. And we have the wood in the garage. Bye guys. It's in the color, so look at the colors blue and pink and purple and red and yellow. And read it, Mama, read it on the back. You don't have to. Okay, now other one. So this one is blue. Let's open it up. Oh, red and green and blue as well, and white. Okay. Open. This is a swing where we get like swing on, like. You guys are actually good vloggers. Careful, here, I'll help you. Oh, I got it. So this is how you open it. I think everyone knows how to open it. Okay, show me. Show it all. And this is how we do it. Wait, Arish. I can pick it up. Let him talk first. This is the instruction book. Hey guys, look it. And then people can go inside of it, like one person or two people can like sit in it, like two small people. Mama can fit in there or no? Yes. No. Stop. Check. Yes, you will. Okay. Is that big enough? Okay. So guys, this is instruction. So I don't open instruction. So this is, what is this, guys? You know what this? Yep. What is it? It's a swing. Like so, yeah, this thing has to open this ball. No. How about we don't open this? We're out to this. So it's heavy. No, don't. It's screws in there, but So don't it's open super it. heavy. This is to hold the swing up. So this is the thing to the world of swinging fun. This adorable instruction book will guide you through the exciting journey of assembling and using your very own swing. You Get don't ready need to read swing that, on, girl. sway and have a blast. Oh my god. Okay. That package. Hey, this is my new bed, guys. Can you believe it? Bye-bye, guys. This is my bed. Where I'm vlogging this house. Bye. अच्छा, इनकी तो लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी। फिर हमने उसके अंदर एयर भरी है, वो जो स्विंग का आया था, फिर उसको हमने लटका दिया तो वो झूले लेते रहे। फिर मैंने एक और ऑर्डर किया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें मैं पूरी नहीं आ रही थी स्विंग में। मुझे बस ये पसंद नहीं आ रहा, पूरी तो आ रही थी बट पसंद नहीं आया ना। तो इसके अंदर एयर फिल किया है, उसके बाद इसको हमने लटका दिया। तो ये कोई इतना, मुझे ना ये सख्त है बहुत, इसका कपड़ा इतना सख्त है कि वो किसी को भी चुभ सकता है, लग सकता है। तो मुझे बस ये इशू है इसका कि जो कोई भी इसके अंदर बैठता है वो इजीली बाहर नहीं निकल सकता। बस ये कि बंदा क्या कहते हैं, फंस जाता है इसके अंदर, बल्कि फंसता भी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ डीप। तो वो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है इस तरह का ना।
तो मैंने इनको कहा कि ये हम नहीं रखेंगे, हम कोई और ले लेंगे। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, आज ही हमारे पास आ जाना है ये, तो हम फिर उसको ओपन करके लगा लेंगे इंशाल्लाह। तो एयर भरने इसके लिए पहले मैं देखा नहीं थी, मैंने इसके इंस्ट्रक्शंस की बुक, तो बाद में मैंने देखा कि वो कैसे करना है। मुश्किल नहीं है इतना, और ये कि बच्चे तंग कर रहे थे, ज़्यादा शोर कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लगा हर चीज़ को करने में। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये फिल हो गया था सारा, तो इसको हमने बंद कर दिया और जिप इसकी। अच्छा, तो ये फिर हम लगा रहे थे झूला। मैं तो नहीं लगा सकती छत पे, तो ये मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे कि इन्होंने झूले के लिए जो क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, हम तो अपनी ज़ुबान में कुंडा ही बोलते हैं, कुंडा लगा रहे थे इसको। तो उसके ऊपर फिर झूला लटका देंगे और बस फिर सारे बैठ गए और झूले लिए बच्चों ने, बड़ा फ़न था। तो नेक्स्ट डे हम लोग जिम बनाने के लिए होम डिपो आ गए। पहले हम मिनार्ड भी गए हैं, और मिनार्ड पे हमने देखी लकड़ी वो थोड़ी सी महंगी थी, तो हमने सोचा हम दूसरे स्टोर पे देख लेते हैं। जब हम होम डिपो पे आए तो मैंने कहा टाइम वेस्ट किए वगैरह, जो मिल रही है चुप करके ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम कभी उधर कभी इधर। लेकिन यहाँ पे हमें अच्छी वैरायटी मिल गई, इनसाइड मिल गई। मिनार्ड का ये कि वो आपको आउटसाइड ठंड में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स हैं, आप इसके अंदर लकड़ी रख सकते हैं, और जो भी आपको लकड़ी पसंद आती है, ये पूरी लाइन है कार्ड्स की पड़ी हुई है, इसके अंदर आप लकड़ी को रख सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट लकड़ियाँ थी, डिफरेंट साइज़ की थी, और उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट थी। यहाँ पे जो भी मैं आपको प्राइस दिखाऊंगी वो एक लकड़ी की है, वो यहाँ पे इन सारी लकड़ियों की नहीं है वो प्राइस। एक लकड़ी की अलग अलग प्राइस है, और जाके आप स्कैन करेंगे एक एक लकड़ी और उसकी पेमेंट करते जाएंगे। कुछ $16 की थी, कुछ $14 की, कुछ $11 की, और $4 की, 5 की, 3 की, 2 की, इस तरह डिफरेंट प्राइसेस थी। हमने जो लिए वो $3 एंड आई बिलीव 44 सेंट थे एक लकड़ी। ये 2x4 हमें चाहिए थी, 2x4 हम लेके आए हैं, और ये तकरीबन हम 20 लेके आए हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत सारी और भी चाहिए थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हम चाह रहे हैं जितना हमें चाहिए एरिया सिर्फ हम उसको कवर करें, तो गर्मियों में बाकी देखा जाएगा, फिर बाकी जो बनाना है हम तब बना लेंगे। लेकिन एटलीस्ट एक एरिया जो बच्चों के लिए दीवार बनानी है, हमने क्लाइंबिंग वॉल बना रहे हैं, जिसके मैंने आपको रॉक्स दिखा दिए हैं पहले, वो हम वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके पीछे मैं सोच रही थी कि जो दूसरी वॉल है उसके ऊपर भी एक लकड़ी का, एक बिल्कुल बारीक सी लकड़ी मिलती है, पतली सी, कुछ इंच की होती है वो लकड़ी, और बहुत बड़े बड़े उसके मिलते हैं, जिस तरह ये मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल इस तरह की होती है। अब इतना मुझे लकड़ी का तो आइडिया नहीं है, वो अगर लेते हम तो वो भी दीवार पे लगाते, वो भी बड़ा अच्छा जैसे पैनल टाइप होता है, लग जाना था। और फिर उसके बाद हमें थोड़े से स्क्रूज़ चाहिए थे मशीन के लिए, और मैं आपको ये चीज़ें भी दिखा रही हूँ कि ये इन्होंने कितना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, कितना ज़बरदस्त प्राइसेस के साथ लगाए हुए हैं। जो चीज़ भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगी यहाँ से। जो लोग ये काम करते हैं उनको तो बड़ा अच्छी तरह आइडिया होगा कि ये कौन सा एरिया मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि जो ये काम नहीं करते उनको तो इतनी दिलचस्पी नहीं होती है इस चीज़ों में। तो यहाँ पे अगर जाएं आप तो आपको ख़ुद ही ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें। समटाइम्स हम हेल्प ले लेते हैं किसी न किसी की कि हमें बता दें, हमें चीज़ नहीं मिल रही ना, या हमें कौन सी चीज़ चाहिए। तो जो एसोसिएट्स होते हैं यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो आ जाते हैं और आके हेल्प कर देते हैं, और हमें बता देते हैं कि चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं और कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, और प्राइजेस के साथ वो बता देते हैं कि आपकी मर्ज़ी, आप जो चीज़ लेना चाहते हैं इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद हमें ग्लव्स भी अच्छे लग गए थे, एक तो रेड और येलो थे, तो मैंने कहा येलो ले लेते हैं, रेड को रहने देते हैं। और एक पैक हमने पूरा ले लिया है कील का, और ये मशीन पड़ी है ये सारी ना, इसके अंदर वो लगाते हैं जो हम कील ले रहे थे, हमें एक पूरा डिब्बा चाहिए था कील का, तो वो हम ले लिए यहाँ से हमने। और ये मशीनें काफ़ी महंगी हैं, और उनके कील भी काफ़ी महंगे होते हैं। 2-3 चीज़ें ही हमने ली और हम फिर यहाँ से भागे, और लकड़ी वगैरह भी ले ली थी हमने। ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को, जब आप सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं और रख लेते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं, तब जब फाइनल चीज़ बन रही होती है तो फिर इजी होता है कि बस बना के तो अब लगा दें। लेकिन उसके पीछे कितना टाइम होता है
कितना आपको चीज़ें सेटअप करना पड़ता है, चीज़ें लानी पड़ती हैं। फिर अगर बेसमेंट में बना रहे हैं तो बेसमेंट में वो चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं, मशीनें, कील, हथौड़ी, लैडर, सब कुछ लेके जाना पड़ता है। और इतना काम हो जाता है ना, एक दीवार बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें बेसमेंट में रखनी पड़ी हैं। पहले घर लेके गए हैं, घर से फिर सीधा बेसमेंट चीज़ें लेके गए, मतलब इट्स टू मच वर्क। एक दीवार सिर्फ बननी है और उसके पीछे इतना ज़्यादा वर्क है, और ये सब काम करेंगे तो ही फिर दीवार बनेगी, ऐसे तो बन भी नहीं सकती है। तो ये टूल बॉक्सेस हैं, आप जो भी टूल्स लेते हैं इनके अंदर आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर आपके पास गैराज है तो उसके अंदर जगह हो तो आप ये सारी चीज़ें टूल बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज़ करके अपने गैराज के अंदर रख सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। ये है, पता नहीं अभी इसका मुझे नाम तो नहीं आता, लेकिन इससे फाइंड आउट करते हैं कि लकड़ी कहाँ है दीवार में, किस जगह पे लकड़ी है और किस जगह पे लकड़ी नहीं है। तो इसका अगर किसी को नाम आता है तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं आता। मगर ये मुझे जब मैंने कोई चीज़ें दीवार पे लटकानी होती है, लगानी होती है, तो ये मुझे बड़ा हेल्पफुल होता है कि मैं इससे देखूं कि पीछे लकड़ी कहाँ, ये फाइंड आउट करता है कि लकड़ी कहाँ पे है ना। जब आप कोई चीज़ बनानी हो आपने तो फिर टूल वगैरह सारी चीज़ें लेनी पड़ती है ना। तो एक ही दफ़ा इंसान जब सारी चीज़ें ले लेता है तो उसको बार बार लेनी भी नहीं पड़ती। ये चीज़ें महंगी हैं थोड़ी। जब आप देखें ना, आप सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। जब एक बार सारी चीज़ें इकट्ठी ले लेंगे आप तो फिर उसके बाद आप आराम से चीज़ें लेके कोई भी घर में काम हो तो वो कर सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन एक बार तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जब आप इसको इकट्ठा सारी चीज़ों को बाय करते हैं तो अच्छा खासा पैसा लग जाता है। फिर उसके बाद आसानी होती है। मुश्किल तो सारे काम ही होते हैं, आसान कोई भी काम नहीं होता। बस उसका पहला कदम जो है वो मुश्किल है। जब आप वो चीज़ करने लग जाते हैं तो फिर सब आसानी ही आसानी होती है ज़िंदगी में। तो चीज़ें लर्न करें, सीखें। मैं समझती हूँ औरतों को ज़्यादा चीज़ें सीखनी चाहिए। इस तरह के काम भी जो घरों में होते हैं छोटे मोटे, वो खुद सीखने चाहिए, खुद करने चाहिए। आप लोगों को भी आने चाहिए। और मुझे तो ये चीज़ भी बहुत पसंद है कि गाड़ियाँ ठीक करनी भी आनी चाहिए ना। अगर गाड़ी का टायर हो गया ख़राब तो वो भी हम चेंज कर सकें, ठीक कर सकें। गाड़ी को कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी हम कर सकें खुद ठीक। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं कि ये औरतों को इतना हुनर होना चाहिए, हुनरमंद, कि वो हर चीज़ को खुद से कर सके ना। डिपेंडेंट ना बने, इंडिपेंडेंट हो जाए हर चीज़ के लिए। ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है, मगर उसको आसान बनाएं। चीज़ें सीख के अपना टाइम, जो बहुत कीमती वक्त है, वो वेस्ट ना करें फ़ोन्स के ऊपर रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के, या फिर फ़ोन पे बातें करके। अपने आप के साथ जुल्म करते हैं आप लोग। अपना टाइम देखें कितना कीमती है, उसको बचाएं और कुछ चीज़ें सीखें अपनी ज़िंदगी के लिए। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आप करें, अचीवमेंट्स, तो बड़ी खुशी होती है। और अगर आपको उस चीज़ के करने के पैसे भी मिल जाएं तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब हमें 2x4 लकड़ी मिल गई थी जो हमने लेनी थी, और उसको अच्छे से देख देख के फिर लेनी होती है कि वो सीधी है कि नहीं। समटाइम्स कुछ लकड़ियाँ टेढ़ी भी होती हैं, और सब एक एक लकड़ी को देख के, यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया था लकड़ियाँ लेते हुए। फिर हम घर ले आए थे लकड़ियाँ, और जैसे मैंने पहले बताया कि लकड़ियों को उठा उठा के, लेकिन मेरे से तो नहीं उठाई जाती, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। मैंने सिर्फ 4-5 ही उठाई होंगी, क्योंकि मुझे ये बहुत हैवी लगी, और इतनी हैवी होती नहीं है, लेकिन इकट्ठी जब उठाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल लग जाता। मैं तो बस इतना कर सकती थी कि गाड़ी से निकाल, बस इतना ही मैं कर सकती थी कि गाड़ी से निकाल के बेसमेंट के दरवाजे पर रख दूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये हमारी बेसमेंट है जो एक पार्ट अभी बना नहीं हुआ, ये वो वाला है। और सबकी बेसमेंट तकरीबन ऐसी ही होती है बनने से पहले। इसकी पहले दीवारों की मेजरमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लकड़ी को काटेंगे। फिर लकड़ी का एक फ्रेम बनाया जाएगा, उसको फिर उठा के ऐसे दीवार के साथ लगाएंगे। बड़ा शोर होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है लकड़ी काटने का, कि कान ही ख़राब हो जाए, इतना मशीनों का शोर होता है, समझ नहीं आता।
लेकिन बनाना तो था, काम तो करना है। फिर पहले बेसमेंट को थोड़ा सा जगह बनाइए वहाँ पे, फिर ज़मीन के ऊपर इसका रख के इसका ये फ्रेम बन रहा है और मशीन के साथ इसको हमने कील लगा देने हैं और जब ये बन जाएगा इसको उठा के दीवार के साथ प्रॉपर्ली लगा देंगे और वो दीवार के साथ इतना इजीली नहीं लगेगा, वो बिल्कुल बराबर होता है, जैसे बहुत मुश्किल से दीवार के बीच में और छत के बीच में इसको रखना होता है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी सारा। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।